Hi everyone, my name is Vinita, your mentor for UPSC Maths Optional. Here on this channel, you will find important resources, guidance, important topics of Maths Optional plus PYQs solved year-wise. Some practice sessions also I have uploaded on the channel. Do like, share and subscribe. Also, you can visit this website. The link of this is given in the description below this lecture. यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज PYQs के PDFs मिल जाएंगे. अनसोल्ड है ये, इनके जो सॉल्यूशंस है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे. Also, you can download the syllabus and subject wise book list and I'll be uploading the revision notes as well. ये सब ready है, I just have to upload, so revision notes भी इसमें update हो जाएंगे. You can download our application if you want to cover Maths Optional complete course from the very scratch. If you are a beginner, then this course is starting for 2026 people and it is starting from 15th of March and it will be a complete course. It includes everything theory plus practice plus previous year questions are also included in it. Answer writing and other helpful guidance is there. Comprehensive notes इसमें available रहेंगे. You will have to make your own notes, but revision notes I'll be providing you. And if you have completed your syllabus and you just need practice plus test series, you can check this test series course as well. The link of this application is also given in the description below this lecture. Let's start our session now. So this is our next question in the PYQ series. मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं. दिस इज 2024 क्वेश्चन है ना, 2024 यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल. क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट एवरी होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन. दैट मीन्स अगर मेरे पास एक होमोमॉर्फिज्म है फाई फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. होमोमॉर्फिज्म क्या होती है पहले ये समझ लो. So if phi is a mapping from G to G dash, phi is a well defined mapping from the elements of G to the elements of G dash, then we should have phi A star B is equal to phi of A dot phi of B. Now listen to me carefully. This star here is an operation of G. You know that G group has a lot to do with the operation. किस ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप डिफाइंड है? द ऑपरेशन कैन बी एडिशन, द ऑपरेशन कैन बी मल्टीप्लीकेशन, इट कैन बी सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी एनी पॉसिबल ऑपरेशन. ठीक है, तो स्टार इज द ऑपरेशन ऑन जी. दैट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑपरेटेड अंडर दिस ऑपरेशन. उनके बीच में ये ऑपरेशन है. एंड दिस ओ इज द ऑपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी डैश. अब आप खुद ही बताओ ना कि if I take phi as a mapping from G to G dash, that means phi is taking the elements of G to G dash. So अगर मैं बोलूँ A जो कि G का member है, then phi of A should be a member of G dash. And if I say B which is a member of G, then phi of B should be a member of G dash. This much you know about the mapping. So if phi is a mapping which preserves this operation, this is known as the operation preservation. कि जो G का ऑपरेशन है वो कैरी आउट हो रहा है फर्दर फाई के अंडर G डैश के ऑपरेशन में. जैसे यार मान लो कि मैं यहाँ पर G का ऑपरेशन प्लस ले लेती हूँ और जो G डैश का ऑपरेशन है वो मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई है. ठीक है, तो यहाँ पर फाई अगर मैपिंग है G टू G डैश और अगर ये एक होमोमॉर्फिज्म है, लेट्स सपोज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो उस केस में फाई ऑफ A प्लस B, A plus B, because A and B are elements of G, so A comma B belong to G. तो A G के जो elements है those are operated under plus operation. So phi of A plus B should be equal to phi of A into phi of B, है ना. Now the operation has to change here. यहाँ पर multiplication आएगा. Reason being phi of A is an element of G dash, phi of B is an element of G dash and G dash में जो operation है that is multiplication. So this is the definition of a homomorphism. अब question ये कह रहा है कि अगर phi कोई homomorphism है और G अगर abelian है तो G dash पे मेरे पास abelian होना चाहिए. So this is the thing we need to prove, but इसका converse true नहीं है. The question says that कि converse is not true. Okay, so let's first prove the one way, है ना. तो let solution पहले यहाँ तक प्रूव करते हैं हम
लेट कर लेते हैं, लेट phi from G to G dash is a homomorphism, is a homomorphism, homeomorphism, ठीक है. I claim that let G is an abelian group, G is an abelian group. Now what is the definition of an abelian group? जिसके एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं. अंडर व्हाट ऑपरेशन? अंडर द ऑपरेशन विच इज डिफाइंड ऑन G. देयर वाज समवन एट द डोर. हमने कहाँ तक पढ़ा था? ओके, लेट G इज एन अबेलियन ग्रुप. अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जिसमें द एलिमेंट्स कम्यूट अंडर व्हाट ऑपरेशन? द ऑपरेशन एट विच G इज डिफाइंड. से जब भी ग्रुप की बात आती है ना, ग्रुप में ऑपरेशन यूनिक होता है ना. रिंग में 2 ऑपरेशंस होते हैं. सो ग्रुप बिना ऑपरेशन के इट्स लाइक नथिंग, है ना. सो यू हैव टू, एवरीथिंग हैज टू डू विद द operation. So if let's suppose A is an element and B is an element of G and star is the operation, then A star B should be equal to B star A. This is the definition of an abelian group. इसके elements commute करते हैं. So let G is an abelian group and A comma B belong to G. So it implies A into B is equal to B into A, है ना. इस तरह से जब हम कुछ नहीं लिखते, इट इज अंडरस्टूड दैट दे कम्यूट अंडर द ऑपरेशन ऑफ G. सो यू डोंट नीड टू राइट स्टार बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड ऑपरेशन. हमेशा स्टार लिखने की जरूरत नहीं है. सो आई क्लेम दैट द होम्योमॉर्फिक इमेज क्या है? G डैश. सो G डैश इज अबेलियन. दिस आई क्लेम G डैश इज अबेलियन. और G डैश को अबेलियन कैसे शो करोगे? बाई शोइंग दैट द एलिमेंट्स ऑफ G डैश कम्यूट. G डैश के एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, यही तो दिखाओगे आप. अब G डैश के एलिमेंट्स कैसे हैं? लेट कर लेते हैं, लेट A डैश बिलोंग टू G डैश एंड B डैश बिलोंग टू G डैश. A डैश बिलोंग टू G डैश, B डैश बिलोंग टू G डैश. सो इट इम्प्लाइज A डैश इज इक्वल टू phi ऑफ A for some A in G, for some A belong to G, and B dash is equal to phi of B for some B belong to G, B belong to G. See, G dash is a homomorphic image of G. So इसका मतलब है G dash में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो एलिमेंट्स G की ही इमेज है. जैसे मान लो कि ये अपना G है और ये अपना G डैश है. यहाँ पर एलिमेंट्स है A B C D. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो phi A, phi B इस तरह से रहेंगे, phi C, phi D. मतलब इनकी कोई ना कोई इमेज होंगी वो. सो इफ A dash and B dash are elements of G dash, that means A dash is equal to phi of A for some A in G, and B dash is also equal to phi of B for some B in G. Now, in order to show that G dash is abelian, I need to take A dash into B dash. So A dash into B dash क्या हो गया? Phi of A into phi of B. So this is equal to phi of A into phi of B, and this can be written as phi of A into B. Simply ऐसा क्यों लिख पाई मैं? Because of the definition of a homomorphism. बताया था ना मैंने कि phi of AB is equal to phi of A into phi of B. दिस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन. अब आप बोलोगे कि मैम आपने डिफरेंट ऑपरेशन तो लिया ही नहीं. सी, यहाँ पर हमें ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है. सो आई कैन सिंपली टेक द मल्टीप्लीकेशन एज माई ऑपरेशन. दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेशन वी टेक. सो वी कांट एवरी टाइम टेक स्टार एंड ओ. सो इसलिए आई हैव टेकन द स्टैंडर्ड ऑपरेशन हेयर. सो phi of A into phi of B. So this is equal to phi AB. Now we know that AB is equal to BA है. बस तो फिर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो. दिस इज इक्वल टू phi of BA, एंड दिस फर्दर कैन बी रिटन एज phi of B into phi of A. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है बाय द सेम प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन. सो phi of B into phi of A. ओके, एंड नाउ व्हाट इज phi of B? दिस इज B dash. What is phi of A? This is A dash. हम चले कहाँ से थे? A dash B dash से. We reached to B dash A dash. So it implies A dash B dash is equal to B dash A dash, and it means G dash is commutative. G dash is
कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो जी डैश कम्यूटेटिव है, यहाँ पर कम्यूटेटिव या फिर अबेलियन, अबेलियन मतलब जो ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, द सेम थिंग, सो इट इम्प्लाइज जी डैश इज अबेलियन, जी डैश इज अबेलियन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है और जो ग्रुप होता है उसको हम अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि कम्यूटेटिव और अबेलियन सेम चीज़, सेम ही चीज़ें हैं, बस वो ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बोलेंगे, ग्रुप है तो अबेलियन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या होगा, पहले तो इसका ये बताओ मुझे। कन्वर्स का मतलब है कि अगर जी डैश अबेलियन है देन जी मे और मे नॉट बी अबेलियन। दिस इज द थिंग कि कन्वर्स क्या है, कन्वर्स इफ जी डैश इज अबेलियन, इफ जी डैश इज अबेलियन देन जी इज अबेलियन, देन जी इज अबेलियन। सो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रू नहीं है ना। तो ये हमें एक तो ना कन्वर्स जो है उसके लिए आई नीड काउंटर एग्जाम्पल। इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग वी कैन नॉट गिव एन एग्जाम्पल। प्रूफ तो अपना ऐसे ही होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, बट इन ऑर्डर टू डिसप्रूव समथिंग आई कैन जस्ट गिव ए काउंटर एग्जाम्पल और वो चीज़ डिसप्रूव हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें ये डिसप्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट सी काउंटर एग्जाम्पल्स थोड़े से आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं इन मॉडर्न अलजेब्रा, बट समझ के करना, मेमोराइज करो दो। सो लेट फाई फ्रॉम, आपने एक ग्रुप पढ़ा होगा P3, P3 द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ सिंबल 1 2 3, 1 2 3 सिंबल से जो परम्यूटेशंस बनती हैं, क्या क्या परम्यूटेशंस बनती है, आइडेंटिटी बनती है, उसके बाद 1 2 3 बनती है, फिर कॉमा 1 3 2 बनती है, 1 3 2, फिर उसके बाद लेट्स से अपना 2 1 3 बनती है, 2 1 3 तो यही है, 1 3 2 हो गया, इसके बाद 2 3 1, 2 3 1, 1 3 2, 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, देन 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, यस 2 1 3, ये एक परम्यूटेशन है ना। उसके बाद जैसे 1 2 1 2, देन 2 3, देन 1 3, देन 1 3, हो गई ना 6 7 हो गई, 6 से ज़्यादा हो गई। इसमें से मुझे लगता है 2 सेम है, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, ठीक है। यहाँ पर 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1, सो ये दोनों सेम है, सॉरी ये दोनों सेम हो गई, ठीक है ओके। देखो यार परम्यूटेशन ग्रुप आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो मैं कह रही हूँ वो समझने के लिए। ये P3 ग्रुप है। नाउ if I take only the even permutations out of it, if I take even permutations out of it, A3 is the set of even permutations, identity हमेशा even permutation होती है। Now if you look at 1 2 3, this is an even permutation, 1 2 3 is an even permutation, 1 3 2 is also even permutation, 1 3 2 is also even permutation. So basically A3 has 3 elements और ये even permutations हैं, ठीक है। Now if I see, you must have heard of the group of permutations, the group of permutations on 3 symbols 1 2 and 3. So there are in total 6 permutations into it, and if I let it's if I take its subgroup A3 is a subgroup of P3 and A3 consists of even permutations. जो P3 में even permutations है ना, even permutation समझते हो ना, which can be written as an even number of transpositions. For example जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 can be written as 1 2 into 1 2 into 1 3 है ना। तो ये क्या है, ये 2 ट्रांसपोजिशंस हैं। ट्रांसपोजिशन मीन्स ए परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर 2, सो दीज आर 2 परम्यूटेशंस ऑफ ऑर्डर 2, सो दिस इज एन इवन परम्यूटेशन, दिस इज एन इवन परम्यूटेशन, सो देयर आर इन टोटल 3 इवन परम्यूटेशंस। देखो अभी हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए है ऐसी चीज़, बट अगर परम्यूटेशन ग्रुप आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही बहुत अच्छा, ये बहुत सिंपल है बेसिकली, उतना कोई कॉम्प्लेक्स इसमें चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। चलो तो फिर अब यहाँ से देखो व्हाट इज़ P3/A3, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी P3/A3, बेसिकली द
I mean to say the quotient groups. The quotient groups. A3 is a subgroup of P3. So P3 by A3 एक quotient group होता है हमारे पास, quotient group. और अब यार इसके जब आप elements लिखोगे ना, इसके elements लिखोगे तो इसके elements मुझे 2 मिलते हैं. So order of P3 by A3 जो होता है वो 2 के equal होता है, is equal to 2. It is equal to 2. और A3 अगर आप फाई एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो फ्रॉम P3 टू दिस कोशेंट ग्रुप P3 बाई A3 तक, तो मुझे पता है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा, ये एक अबेलियन ग्रुप रहेगा. इसमें बस 2 ही एंट्रीज रहेंगी. आप इसकी एंट्रीज निकाल सकते हो. A3 के एलिमेंट्स को ऑपरेट कर दो P3 के एलिमेंट्स पर. ये कोशेंट ग्रुप की जब आप एंट्रीज निकालोगे तो इसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं, और जिस ग्रुप का ऑर्डर 2 होता है, मतलब इवन नंबर होता है, 6 से कम होता है, तो वो हमेशा अबेलियन होता है. ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज अबेलियन. सो यहाँ पर ये तो अबेलियन होगा, बट जो P3 है वो अबेलियन नहीं है. नॉट अबेलियन, नॉट अबेलियन, नॉट एन अबेलियन ग्रुप. ठीक है. सो दिस इज ए काउंटर एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस P3 टू द कोशेंट ग्रुप P3 बाई A3 वेयर A3 कंसिस्ट ऑफ द इवन परम्यूटेशंस. तो ये हमारे पास कभी भी बेसिकली अबेलियन नहीं आता है, मतलब P3 अबेलियन नहीं है, बट ये अबेलियन है. P3 बाई A3 इज अबेलियन. सो ये एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जिसमें G डैश तो अबेलियन है बट G अबेलियन नहीं है. सो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू. द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू. यही हमें प्रूव करना था. चलो, ये 2024 का क्वेश्चन था मॉडर्न अलजेब्रा से. सी मॉडर्न अलजेब्रा में ना चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. तो आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना इस तरह से, और अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा. जैसे यहाँ पर ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन यूज़ हुआ है, यहाँ पर कोशेंट ग्रुप भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म भी यूज़ हुई है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यूज़ हुई है, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन यूज़ हुई है. सो ऑपरेशन प्रिजर्वेशन, तो ये सारी चीज़ें ना दीज आर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल, और ये इंटरकनेक्टेड है सारा. ठीक है. तो मॉडर्न अलजेब्रा इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू से, बट आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको बहुत हद तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो सॉल्व कर पाओगे आप. थोड़ी तो मेहनत यार सभी चीज़ों में लगती है. देखो, कुछ तो नया होगा ही, जिस भी ऑप्शनल को आप पढ़ोगे उसमें कुछ तो नया रहेगा. चलिए, तो फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ. ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर.